the group of cells, the group of plant cells, the group of animal cells which are concerned to a specialized function called plant tissue or animal tissue. There are different two types of plant tissues are two types, metameric and permanent tissue. Metameric are the particular types of tissue always founded in a growing or a growth regions, right? The division, the cell division, rapidly cell division is the mainly task played by the metameric segment. There are different three types of metameric tissues as their location. First is apical, second is intercalary, third is lateral meristematic tissue. First, apical founded at the tip of root and stem, right? Root tip and stem tip is made up of metameric tissue that called apical meristematic tissue. Intercalary at the node or at the base of branch, at the base of leaves, such kind of the meristematic tissues called intercalary. Lateral meristematic are founded all the permanent tissues like xylem and phloem for their secondary growth. Such kind of metameric tissues called also specialized named by known as cambium, that is called cambium, right? Next, permanent tissues are made up of the group of same kind of cells or the different kind of cells, more than one types of cells, such kind of permanent tissues. Less division is they have not capacity for the cell division. They are modified for a specialized function. So they are two types, simple and complex. If the permanent tissues are made up of the same kind of cells, such kind of the tissues called simple permanent tissues. Parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. Parenchyma in a circle cells, they have a equal cell wall. They have a large intercellular spaces, and as according their specialized functions, if they have a large quantity of chlorophyll, so they are concerned to their photosynthesis. Such kind of parenchyma tissues called chlorenchyma. If they are related for the buoyance, वो buoyancy provide करते हैं plants को float करने के लिए. Aquatic plants में generally इस तरह के parenchyma होता है. That kind of parenchyma called aerenchyma, because large air cavities are filled in such kind of permanent tissue parenchyma. Collenchyma are circular cells. They are spherical cells, but the cell wall is more thickening at the corners. So corners पर जो intercellular space होता है quite थोड़ा कम होता है. Collenchyma होगा. Mainly they are responsible for the flexibility of for the plant. यानी कि ये flexibility उस plant portion को provide करने का काम कर रहे हैं. Sclerenchyma, their cell wall is made up of specifically resident or hard chemical substances. That chemical substances is lignin. So such kind of tissues are responsible for the rigidity and basically strongness or stiffness or hardness देने के लिए basically होता है. Complex tissues, complex permanent tissues are basically example is vascular tissue or transportation system, xylem and phloem. Xylem, as we know, made up of different four components. Only one component is left, that called xylem parenchyma. Rest of all are dead. Vessel, tracheids, xylem parenchyma and xylem sclerenchyma. Xylem parenchyma को छोड़ के सारे dead होते हैं. Phloem, permanent tissue, vascular tissue, sieve tube, companion cells, phloem parenchyma and phloem sclerenchyma. Only phloem sclerenchyma is dead here. Rest of all are live cells. Right? This is any plant tissue. Now come to the animal tissue. Is there any query, any doubt from your side? Please ask. Does anybody have any kind of doubt? Please ask. Because okay. Because we have only a 1 day for the revision session. Yeah. Group of cells of the same kind of cells or different kind of cells? The group of cells for the group of cells for their specialized function. Is that clear? Now come to the animal tissue. The tissue part, the animal tissue. Okay. हाँ, बोलिए.
या अलाइव मीन्स ऑल दे आर अलाइव, एक ही डेड होता है, बाकी सारे लाइव होते हैं। ये स्टार पॉइंट है, ध्यान रखना इसका। इज दैट क्लियर? बंद करो, माइक बंद करो, म्यूट योर माइक, म्यूट योर माइक, जस्ट माइक म्यूट करो अपना। एनिमल टिश्यूज आर डिफरेंट 4 टाइप्स। अपना माइक म्यूट करो, किसने ऑन करा हुआ माइक म्यूट कीजिए। एनिमल टिश्यूज आर डिफरेंट 4 टाइप्स। फर्स्ट नंबर एपिथेलियल टिश्यू। Epithelial tissues are related to for the lining, external lining, internal lining for a glandular secretions। जो हमारी बॉडी में जैसे लाइक स्किन है, स्किन की 4 लेयर है, वो एपिथेलियल टिश्यूज की बनी हुई है। आपके माउथ का जो इनर मोस्ट लेयर है, आपके ट्रैकिया का इनर मोस्ट लेयर है, आपके नोज के इनर मोस्ट लेयर है, उसी तरह से आपके इंटरनल ऑर्गन्स में हार्ट का जो आउटर स्ट्रक्चर्स है, एलिमेंट्री कैनाल का जो आउटर स्ट्रक्चर है और उसके डिफरेंट 4 लेयर्स अंदर की तरफ है, दीज आर ऑल रिलेटेड टू एपिथेलियल टिश्यूज। ऑल ग्लैंड्स जो एंजाइम सिक्रेट कर रही है, वैक्स सिक्रेट कर रही है, स्वेट सिक्रेट कर रही है, टीयर सिक्रेट कर रही है, दीज आर ऑल मॉडिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज। सो एपिथेलियल टिश्यूज के 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हो गए। फर्स्ट तो हो गया इनका सिक्रेशन, सेकंड हो गया एब्जॉर्प्शन, बिकॉज माइक्रोविलाई एंड विलाइज आर आल्सो मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। थर्ड नंबर है बेसिकली ये आपकी बॉडी में सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन के अलावा ये आपकी बॉडी में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का भी काम करती है। और फोर्थ नंबर हो गया किसी भी इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन्स को ये डेलिकेटेड शेप एंड साइज देने का काम भी करे। दे आर डिफरेंट 4 टाइप्स ऑफ फंक्शन। पहले मैं फंक्शन की बात कर लेता हूं, यहां पर शेप एंड साइज प्रोवाइड करने का काम कर रही है। सेकेंड, दे आर आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू द डेलिकेट पोर्शन ऑफ द प्लांट एनिमल ऑर्गन। सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का नाम आते ही सीधी सी बात, 2 जगह एब्जॉर्प्शन होता है, माइक्रोविलाई और विलाई, बेसिकली एलिमेंट्री कैनाल में। इज दैट क्लियर? एलिमेंट्री कैनाल। एंड सेकेंड, the epithelial tissues are also founded in a nephrons। nephrons के अंदर selective reabsorption होता है, जहां पर फूड को यूरिन में से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स वापस रीअब्सॉर्ब किया जाता है। epithelial tissues, right? As according their distribution, as according their composition, as according their functions, they are different 2 types of epithelial tissues। epithelial tissues है वो 2 टाइप के होते हैं। Simple epithelium tissues are made up of the same kind of cells of for a single layer, एक single layer बनाते हैं। और compound epitheliums, they are made up of more than 1 types of epithelial tissues are made up of 2 and more layers। compound और ये हो गया 2। Simple epithelium tissue में स्टार पॉइंट लगा के लिख देंगे, are made up of single 1 layer of the cell of the same kind of cell। मैंने 2 चीज लिखी है, 1 लेयर ही होती है और सेम काइंड ऑफ सेल्स होती है। इसके अकॉर्डिंग ये 3 टाइप के हो गए। दी सेल्स बहुत पतली है और सिंगल लेयर में होती है, तो इस तरह को हम कहते हैं स्क्वामोजस। आपकी स्किन के ऊपर जो लेयर्स होती है, स्किन के ऊपर लेयर है वो स्ट्रेचिश फॉर्म में होती है, उनकी मोटाई बहुत कम होती है, सच काइंड ऑफ स्क्वामोस। सेकंड है क्यूबॉइडल, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स में होती है। क्यूबॉइडल लाइक सेल्स आपकी बॉडी में स्किन में थोड़ा डेप्थ में होती है। दे आर आल्सो मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ सेल्स, क्यूब लाइक सेल्स एंड मेड अप ऑफ अ सिंगल लेयर, क्यूबॉइडल सेल्स। एंड थर्ड इज कॉलमनर सेल्स, कॉलम पिलर्स जैसी बनी हुई कॉलमनर सेल्स। माइक्रोविलाई और विलाइज सिंगल सेल से मिलकर बनी होती है और वो भी पिलर लाइक सेल्स, दैट काइंड ऑफ कॉलमनर सेल्स, राइट? स्क्वामोजल, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर। व्हाट प्रॉब्लम? अपना माइक ऑन क्यों कर रहे हैं बिना आपके प्रॉब्लम के? स्क्वामोजल, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर। आपको क्या करना चाहिए? ब्लर आता तब बताइए, वो कीजिए आप।
मेरी साइड से कोई दिक्कत नहीं, आपकी साइड से दिक्कत है, अपने आप को लॉग आउट करके लॉग इन कीजिए, अपने मोबाइल को रेक्टिफाई कीजिए, कुछ भी कीजिए, ये इज योर टास्क। ओके, नाउ स्क्रोमोसोम, क्यूबॉइडल एंड कॉलोनर सेल्स आर एक ही टाइप की सेल्स, एक ही टाइप की सेल्स होती हैं और एक ही सिंगल लेयर से मिली होती है। यदि वो स्ट्रेचेस फॉर्म में है, थिन सेल्स हैं, क्यूबोइडल सेल्स ट्यूब लाइक सेल्स हैं, और कॉलमनर सेल्स पिलर लाइक सेल्स है। माइक्रोविलाई और विलाई के अंदर है बेसिकली कॉलमनर टाइप सेल्स होती हैं। यदि इनमें से किसी भी सेल के फ्री एंड पर सीलिया होती है तो उन्हें सीलेटेड कहेंगे, जैसे सीलेटेड क्यूबॉइडल, सीलेटेड कॉलमनर। वहां पर मेनली ये काम के साथ साथ वहां पर क्या काम हो जाएगा, सिक्रेशन का वर्क भी हो जाएगा, प्रोटेक्शन देने का काम भी यहां पर बेसिकली होता है। ठीक है, इनमें से कंपाउंड सेल्स मिलकर के इनमें से कुछ ग्लैंड्स भी बनाने का काम कर, स्किन में भी होती हैं, माइक्रोविलाइज में भी होती है, या आपके ओविडक्ट में भी होती है, ये नेफ्रॉन्स में भी होती है। तो इनका क्या क्या फंक्शन हो गया, प्रोडक्शन, एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन एंड सिक्रेशन, ये सभी इनके काम होंगे। कंपाउंड की बात करूं, इनमें से एक लेयर इसकी, एक लेयर इसकी, एक लेयर इस, और सभी की मिक्स क्लस्टर बनता है, दैट्स काइंड ऑफ कॉल्ड कंपाउंड ग्लैंड्स। ये कंपाउंड ग्लैंड्स होगी, मेड ऑफ दैट मोर देन वन लेयर, मेड अप ऑफ more than one layer, made up of more than one layer। ये जो वन लेयर्स हैं वो बेसिकली अलग अलग टाइप के होते हैं। यदि मैं बात करूं यहां पर कंपाउंड एपिथेलियम की, तो कंपाउंड एपिथेलियम में आ जाते हैं सेल को सेल से जोड़ने वाले कुछ जंक्शन, जिन्हें सेल जंक्शन कहते हैं। सेकेंड नंबर गैप जंक्शन, एनिमल्स के अंदर एडजेसेंट सेल्स जिन पर्टिकुलर आउटग्रोथ की वजह से जुड़ती है वो कंपाउंड टाइप के टिश्यूज से मिलकर बनी होती हैं। तो दैट्स ऑल आर एपिथेलियल टिश्यूज। नेक्स्ट सेकंड नंबर लेते हैं कनेक्टिव टिश्यू। सेकंड नंबर इज कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्ट करना बॉडी के पार्ट्स को, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड भी आ रहा है, कनेक्टिव टिश्यू में आपकी बोन्स भी आ रही हैं। इसी तरह से हम देखें तो इस हिसाब से ये हो जाती हैं लूज। सेकेंड नंबर हो गया आपका डेंस, थर्ड नंबर हो गया आपका स्पेशलाइज्ड। देखिए कनेक्टिव टिश्यू में मेनली देखा जाए तो तीन इंपॉर्टेंट चीजें होती है इसमें, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनाने वाले सेल्स, और फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स और फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स बनाने वाली सेल्स दोनों मिली रहती है एक लिक्विड पोर्शन। यदि वो लिक्विड पोर्शन बहुत ज्यादा डेंस फॉर्म में है तो उसे डेंस कनेक्टिव टिश्यू कहेंगे, यदि वो लूजली है तो उसे लूज कनेक्टिव टिश्यूज कहेंगे। और स्पेशलाइज्ड फंक्शंस में हो जाते हैं, दे आर मॉडिफाइड फॉर देयर स्ट्रक्चर्स फॉर द स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। तो लूज के अंदर फाइब्रोब्लास्ट, फाइबर्स एंड मैट्रिक्स लिक्विड पोर्शन, दिस इज वेरी लूज। फाइब्रोब्लास्ट फाइबर हो गया, फाइबर और फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होगी, मैट्रिक्स प्रेजेंट बट इन अ वेरी डेंस फॉर्म, थोड़ा टाइट हो गया। तो लूज के अंदर क्या नाम आ जाते हैं आपके, लूज के अंदर आ जाते हैं एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू। एरियोलर टिश्यूज में दो सेल्स के बीच में, दो टिश्यूज के बीच में एरियोलर टिश्यू, जैसे जॉइंट बिटवीन स्किन लेयर्स, आप बिना देखे पढ़ाई करो, जॉइंट बिटवीन स्किन लेयर, दिस इज कॉल्ड लेयर। आपकी ये जो स्किन है उसमें 4 लेयर्स हैं, चारों लेयर्स इस तरह से लगती है,
तो जिन डेलिकेटेड पोर्शन की वजह से आपस में कनेक्ट रहती है, दैट ऑल कॉल लूज फाइबर टिश्यूज, एरियलर टिश्यू। नेक्स्ट हम बात करें यहां पर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में आपने नाम सुना होगा लेगामेंट, बोन प्लस बोन, बोन को आपस में जोड़ने वाले फाइबर, और टेंडन, बोन्स को मसल से जोड़ने वाले फिलामेंट। These are the connective tissues made up of the dense like matrix structure. अब हम बात करें स्पेशलाइज्ड फंक्शंस की, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर आ जाते हैं आपके दो स्पेशल टाइप के हार्ड, जो कंपोनेंटली थोड़े से बहुत ही ज्यादा स्पेशलाइज होते हैं, लाइक बोन्स एंड कार्टिलेज। जैसे नोज एंड, एयरपिन्ना एंड, ट्रैकिया सर्कल्स, these are made up of very soft and delicate bone-like structures. These soft and delicate bone-like structures called cartilages. This is the example of specialized. And bones, as you know, we have a 206 bones in our body. Shape, size और motion provide करने में ध्यान देती है। यदि मैं फंक्शन की बात करूं, मसल्स और बोन्स क्या देने का काम कर रही है, क्या फंक्शन करवाने का काम कर रही है, सेफ साइज बनाने के साथ साथ आपको मूवमेंट करवाने में ही हेल्प कर रही है, प्रोटेक्शन देने का काम भी कर रही है। थर्ड हम बात करें यहां पर मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू, muscular tissue, muscular tissues are different three types. Muscle fibers are three types, so muscle tissues are also three types. Number one, skeleton muscles. Number two, smooth muscles. Number three, cardiac muscles. स्केलेटरी मसल्स में क्या हो रहा है, स्केलेटरी मसल्स वो सिलिंड्रिकल शेप की होती है, लाइट और डार्क बैंड्स होते हैं। बेसिकली ये वॉलेंट्री फंक्शन करने वाले ऑर्गन्स में होती है, लाइक दिस। दीज आर कॉल्ड आल्सो स्केलेटरी बोन्स, दीज आर आल्सो कॉल्ड सिलिंड्रिकल बोन्स, दीज आर आल्सो कॉल्ड वॉलेंट्री बोन्स, राइट। दीज आर कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स। तो स्केलेटरी जो बेसिकली स्केलेटन यानी बोन्स के साथ में जॉइंट बनाने का काम कर रही है। आप मोशन कर पा रहे हैं, ये मोशन कर पा रहे हैं, तो यहां पर जितनी भी बोन्स के साथ में मसल्स ऐड हो रही है वो आपके स्केलेटन को सपोर्ट देने का काम कर रही है, शेप और साइज करवाने का काम कर रही है। ये सिलेंड्रिकल है, इनको सिलेंड्रिकल मसल्स भी कहते हैं। ये वॉलेंट्री वर्क कर रही है, दैट्स व्हाई आल्सो कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स। और इनमें लाइट और डार्क बैंड्स, पट्टियां होती हैं, स्ट्रेटेट्स होती हैं, दैट्स व्हाई आल्सो कॉल्ड स्ट्रेटेट मसल्स। स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स are founded in a very depth in our body. They are related to the involuntary organs and involuntary functions, उनसे रिलेटेड है। बेसिकली इनपे लाइट और डार्क बैंड नहीं होते, स्मूथ फॉर्म नजर आती हैं। तो इनके क्या क्या नाम हो गए? स्मूथ मसल्स आर कॉल्ड आल्सो इनवॉलेंट्री मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स, राइट। इनमें सिंगल न्यूक्लियस होता है, इनमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, इसमें सिंगल न्यूक्लियस होता है। कार्डियक मसल्स आर ओनली फाउंडेड इन हार्ट। तो कार्डियक मसल्स कॉम्बिनेशन है किस किस का, ध्यान दो, वापस से अच्छे से क्लियर कर लो। सिलेंड्रिकल सेल्स जो सिलेंडर जैसी दिखती है, एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं, लाइट और डार्क बैंड्स होते हैं, स्केलेटन के साथ सपोर्ट करने का काम कर रही है, ये वॉलेंट्री फंक्शन करने का काम कर रही है। नंबर वन स्केलेटरी मसल्स। नंबर टू, सेकेंड नंबर जो भी है, सेकंड नंबर है वो क्या होते हैं, स्पिंडल शेप होती हैं, उनमें साइटोप्लाज्मा वेल क्लीन्ड होता है, राइट। और वेल क्लीन्ड होने की वजह से बेसिकली वो थोड़ी क्लियर होती है, ठीक है। अब आ जाएं आप न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू, नर्व सेल्स बेसिकली दो पोर्शन से मिलकर बनी होती है, सेल बॉडी एंड प्रोसेस। सेल बॉडी के अंदर क्या क्या होते हैं, उसका न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्मा होता है, निसिल ग्रेन्यूल्स होते हैं। निसिल ग्रेन्यूल्स क्या है, निसिल ग्रेन्यूल्स है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और आरएनए का क्लस्टर है, और इससे कुछ ब्रांचेस निकल रही होती है। वो ब्रांचेस दो टाइप की होती हैं,
naked branches called dendrites and dendrons to capture the stimuli, and एक बड़ा होता है जो कवर्ड ब्रांचेस होता है दैट कॉल्ड एक्सोन्स, उन कवर्ड को कहते हैं माइलिन शीथ, और माइलिन शीथ है वो कंटिन्यूअस नहीं होती, डिसकंटिन्यूअस होते हैं, उनको कहते हैं नोड्स ऑफ वैन वेयर नोड्स। हर एक एक्सोन का एक एंड होता है जहां से वो दूसरी नर्व के साथ जुड़ता है, उस जॉइंट को कहते हैं सिनेप्स, और जो लास्ट का एक एंडिंग पोर्शन होता है दैट्स कॉल्ड एक्सॉन एंडिंग। आई होप आपने अच्छे से रिवाइज किया है, और ये आपका सेशन है वो मेरे एग्जाम टर्मिनल एग्जाम से ठीक पहले का है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। सो डू ऑल, अच्छे से सब अच्छे से पढ़ना और उनके करना, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, केमिस्ट्री पार्ट, फिजिक्स पार्ट अच्छे से करना।